अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैबर सहर के तासु ज़वाइम हर कले ज़ेम आलिया मरवत और उम्मीद लरम चे तासुबा वाड़ा चिचोरा हम दा खैबर शीशा चिचोरा हम तनान गुरिया बवाड़ टिक टाक की खैरियत सरवई और दा सहर आगाज बेची आबे डेर खुलाई करी जनाना बचे लगे आबा किचन से लगे या बा मत दस लगी चे आबा सफायान कई कोरोना बव सर सफा हम कई और दे चे मख मुझ दस कोर चे कारूना हम कवल या बनाश्ते हम तैयार वाले नो मुझ बदा से स्क्रीन जान लगवले वो टीवी मोबाइल लगवले वानो मुबा लका मॉर्निंग शो कतल वसराम वो एंजॉय कवल और नवी नवी शयान वो हम वसरा इज़्दा कवल दीचे बच्चा कुम मेलमाना हम रागली वो दीचे बच्चा कुम मजदारे खबरें के दली चे बमुज हम इज़्दा करे कवले और चकुम कतुन की वो अगब हम वसरा इज़्दा करे कवले नो चे नन सहर द उम्मीद लरा चे दा खैबर सहर चे दी चे हर इंसान ता हौसला हम मिलाव की जी मुश्ता हम हौसला सर मिलाव की जका चे दी चे दा से हम गेस्ट रागली चे इगन मुश हम दकड़े को तासो हम दकड़े को और दी चे बतासो हम वाए हो चे जकी सर चेरे दनन खुदा जजाता गुडे लफ्ज वर का बलासम ما السلام علیکم جی په خیر راځي ما انتظار کولو بل فرید چې اړ نن سګي کنه ماړو پکې خبر نه کوله سر تاسو پته استا زکی صاحب زئی خبر ته گزه چې سحر راتل نه نو ما ویلا لکه مطلب ټمپریچر مې او د سزړه مې خراب ده لکه نو ما ویل چې ز چوټي حکم کړه سم نه بیا ما ویل چې کمیټمنټ سره د زبر اجم نو اوس ما لالا سره هم دغه خبر کوله ما وتله خان لالا سره ما وتله چې خان لالا ما خو طبيعت हम खराब दा मैं एकदम में खराब से टिक टाक और एकदम जैसे बॉडी पेन के नन सब डेंगी डेर ज्यादा जी बिल्कुल आओ कन आ डेर ज्यादा वायरल से दुन मा दस नहीं माते खान ला हम दगवल दस नहीं डेंगी वाल टेस्ट का आनी तसले تاسو خو دا وی د کرونا یو قسم راوته نن سبا او دا एकदम لګي وار انفیکشن او एकदम ستا فیور چي دا ډیر زیات شي جی 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 بیا یو غنټه ته دا شته وای که بالکل ټیک بالکل 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 نو یو فیل اوکے کنه او هغه د کی میډیسن دومره هغه نه کی او یس انټي بایوټیک ضروری دي مست دي ګرانو کدر کو خپل خیال ساتي نن سبا عجیب عجیب بیماریاں دي لکه داس بیمار اول خو صرف خواخه و نشته بیماری خبره کوم سوري اول صرف لکه یو سو بیماریاں نه کنه لکه اوس څوک د خزینه تنګ لکه څوک د ملیریا نه تنګي څوک د خوا لکه سوري ټایفاید نه تنګي جی بالکل څوک داسي چې یو بل نه تنګي د आपस ته رښتې دي کنه د بیماریانو چې رښتې دي چې هغه وته غټه خواخي سی بیا اندرور سی پچې بیا انګور سی زموږ د چینل کې یو علامه کنه یو وخت هغه یو خبره کړې و داغه اکثر داس یو دوه هفته پس یو اپلیکیشن راو د چټه کنه جی جی نو ما ویل یار دی نو هغه به ویلې هغه به پکې اپلیکیشن کې کړی چې یار زما ټایفاید شوی دی کنه ما ویل یار دا څنګه ټایفاید دی چې دا نه کېږي هر دوه هفتې پس جی نو هغه اوس یو ورځ یو زمونږ کشر سره ناست و هغه اوس دوبۍ کې نن سبا حیدر هغه سره ناست و نو هغه ته وایي چې که ټوټي یې کنه نو زر ته یو طریقه ښیم اوس زه شاته او دو ته پته نشته چې تاسو شاته پسې ولاړ نو هغه وایي داسې بیماري یاده وه چې د هغې اډو پته لګي چې لانګ بیماری لکه اوس ټایفاید اکثر داسې بالکل شپږ میاشتې پس بیا شروع شي 3 میاشتې او چې لږ پچې واک پچې وکړې لا وګرځېږې بیا واپس نه راته بخار راسي دا مسله نو پچې زه تاسو یم چې ډېر خیال کوئ چې دا نن سبا چیسټ انفیکشن موسم چینج شوی دی ډېر زیات شوی دی د بیماریانو خبرې سهار وختي ولې ورکوو تاسو څومره سرسبز ښکاري سرزکه سرسبز رالو خو سرسبز پچې پاتې ما ویلې چې داسې نه ونه غورځوي خو اوس بیا زه فیټ یم چې راتله نه 2 پیناډول مې وخوړلې ځکه چې وایي ډینګي چې خو لکه نور ټیبلیټس کار هم نه کوي نه ډریپس لګولی سو نه انجکشن کولی سو نو چې چاته هم ډینګي کېږي علامات ته کېږي چې تاسو وجود چې پین هم کېږي نو زه ځکه خلکو ته وایم چې په ما تېرېږي نو 2 پیناډول چې دي سحر خورو مشام هم خورو لکه 3 ټایم خورو وجې چې مشام مخام نو هغې د دې مطلب دا دی چې ګرانو کتونکو زموږ په خیبر پښتونخوا کې تاسو ته پته دی ډېر زیات ټیلنټ دی او دا ټیلنټ یوازې عالیه لازکي نه دی دا ټیلنټ به تاسو ګورئ چې ورلډ وایډ دی بالکل د دې ځي هلکان جینکۍ چې دي هغې یو شو بیز شو میوزک کا میوزک انډسټري دا که ورسره تاسو وګورئ بزنس پرسنز دي دوبۍ کې بالکل هغې مشهور دي خپل هغې حوالې سره بالکل بالکل همدغسې زموږ یو الګ دی جي مونږ به نن سپیشلي ولې چې مونږ ریپرزینټیټیو یو د پښتنو ایگزیکټلی نو مونږ به نن د یو پښتون رور سفارش کوو تاسو ته هغه پښتون رور دی زمونږ
کلیک جی جی مونږ سره به دلته هوسټینګ کولو مونږه خیبر هغه ټیلنٹ را پیدا کو او سیف علي خان دغه نامه ده اوکې نن سیف سبا علي تاسو خان به ګورئ چې تماشا کې لګیا دی جی 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 هغه خپل هلې ځلې کوي جی 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 سو سیف وی آر پراؤډ اف یو خیبر ټي وی از پراؤډ اف یو او مونږ تاسو ټولو ته ګرانو کتونکو ته دا یو ریکویسټ کوو چې سیف علي خان لا ووټ ورکړي هغه خو اوس پرون مشکل نه راووتو ټیک شو ما به نه کتلی د تماشا اول چې دوه سیزن چې کوم سٹارټ سلی ما به نه کتل او د دې سیف علي خان له وجه زه هم ګور ډیر انټرېسټینګ چې کوم د هغه تماشا دوره انټرېسټ کړای دا کنه چې هر چوکې ګوري یو جلک کې ګورو او بالکل راځي چې وګورو मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम सैफ अली खान है और मैं पेशावर केपी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं सिंगर, सॉन्ग राइटर और म्यूजिशियन हूँ और तमाशा लगाने आया हूँ यहाँ पे। क्या बात है। मैं फन लविंग एंटरटेनमेंट मुझे पसंद है, लेकिन जो लोग मुझे दाल चावल समझते हैं मैं उन्हें कभी बिरयानी वाली इज्जत नहीं देता। वाह जी वाह जी वाह जी बिल्कुल ډیر زبردست اماشر اکثر وایي کنه وی آر الیټ جی کنه مونږ هغه خلک یو چې مونږ خپل نیش لرو مونږ هغه خلک یو چې مونږ ډیر یونیک یو الیټ یو بالکل بس خبرو سره پته لګي چې یاره ماشاءالله دا د کم زیده جی بالکل هغه کلا خاصم ده لکه اوس وګوره تا ته وڅوکو ته که اوس چېرته پیارس کې وای نو ماډلینګ به دې کولی او بالکل بالکل سر بالکل بالکل ماشاءالله وګوري ما ته وڅ ګوري ځکه اوس یونان کې وای چېرته فلمونو کې به هیرو وای سر ماډلینګ هم سره کولی اصلا ایگزیکټلی دا خبر هم صحیح ده او اوس دا د چې لږ غټسلی یو نو شاید هلکې بدله که یار دا اوس بدله که زه خو تا سره نه کوم پروګرام دا په مخامخ څوک چاته وایي چې دا چې زه بار نه خبرې کوم دا بریک والی هم دې سره بریک والی جی کتونکو دې سره اخلو یو وړوکی شان دمه غوندې او دې بعده به موږ سره ډېرې ښکلې ځوانانې دلته کښېنېږي چې څرنګې تاسو سیف علي خان وکتلی چې څرنګې په خپل ټیلنټ باندې دی هلته خپل کې پي کې پرزنټ کوي او داسې به دلته نورې جینکۍ هم ګورو چې کوم څوک سوشل میډیا سره هم ریلیټډ دي څوک لوبو سره هم دي څوک د سافټویر انجینرینګ هم کوي نو وړوکی شان دمه اخلو او بیا به دوی سره تاسو ملاقات کوو Welcome back. We are sitting with two very interesting or very talented خلکو سره ناسو ویلې څه شی ولې لکه سر ویلې ټیلنټ سر چې ځکه چې ځوانان دي سر لکه بوډاګان ټیلنټډ نه سر بوډا داسې خبره وکړه لکه چې سر بوډا نو سر زه دې اوس دا لشکي لشکي پوه مې کړه ځوانان داسې دي که نه سر چې ځوانان هر چیز ته لاس وراچوي که نه چې بوډاګان لشکي سي که نه آ بیا وایي چې بس هسې موږ لشکي اچیو کړي دي شیان بیا لشکي لیزي پن چلی دی ریسټ وکړو او ځوانان چې نوی انرجیټک وي که نه نو وایي چې هر فیلډ ته لاس اچوي یو بل فیلډ ته ډبل ټریپل شیانو سره کوي او بوډاګان بس سر ریسټ کوي خالي ماشاءالله مونږ یاره دا ماشوم وګورئ جي ماشاءالله الله تعالی دې ولا ژوند ورکړي مشکل ده لکه خو بیا هم که نه دعا به ورته وکړو لکه دا اول نه دومره کمزورې د زیرې دا نه ده دا چې بوډۍ تاسو لږ امیجن کړئ چې دا به څنګه ښکاري اے آی باندې زه تاسو هغه اے آی باندې جی ایم صاحب ته پروډیوسر صاحب ته چې تاسو لږ بوډۍ کړي که نه او بیا موږ ته جی جی بالکل ویسے سر زبا کښلی ښکارم کښلی به ښکارم ډېر خلک داسې جي بوډاتوب دلته نه وي ډېر خلک داسې چې هغې که ایج زیات هم شي که نه هغې لګیا یې خپل کار کوي جی سر جی بالکل که نه هغې دا شیز نه ګوري چې یاره دا زما کار نه دی لا زه به دا کار نه کوم نه هغه لګیا یې خپل کار کوي او هغه ټول عمر ځوان خو دا داسې خلک چې هغې سر هر څوک خو تاسو غوندې نسي کېدلی که نه ته ماته نه زه خو یم ځوانه ځکه زه سر تمای هر څوک تا غوندې تاسو غوندې نسي کېدلی قسم دی یار دا خو ډېره بېعزتي دی یار والله لکه یو هلک ته دا نو زه د مشرانو خبره کوم ډېر داسې مشران دي چې هغې وایي چې یاره بس دا ژوند چې دی که نه هغې وایي چې بس ته څومره ژوندي دومره زده کړه کې یو آر الویز ا سټوډنټ یو آر لرنینګ ایوری ډے نو هغې نوي کارونه کوي چې کم د روټین کارونو کې پروز شي که نه هغې بوډاګان شي نو آی تھنک اټس آل هیر ٹھیک شو جی ښه موږ سره نن میلمانه څوک دي
सर मुस्तनन मेलमाने दी शवाल जाहिद सॉफ्टवेयर इंजीनियर और बेदे सरा प्रोडक्शन डायरेक्टर तस्ता प्रोग्राम हर कले वायु वेलकम शवाल थैंक यू सिंगे तासु खैर खैर खैरियत है तबीयतम खदा खैर खैरियत है गुड यार वेरी नाइस खा او دې سره بیا ډیر خپل پیغله هم ناسته ده تکړه پیغله هم ناسته ده ملائکه عادل او چې فود بلاګر دا مزدار مشتبه کیمرا باندې کانې شي او بیا ټیسټ هم کیه بیا تاوي چې ډیر مزدار کانې دي نو موږ بیا ډیر زیات و چې انسپایر وګی شنورم بیا ایجی ته موږ ور روان یو کنه چې چای کوم هم او چې مونږ حالت ورشو هغه شاده خوان نه کی چې دا څه چل دی صدا بدینه تاسو کو دا بدینه اصل کې دیله خو سپیشل پوکی کنه مکنم پکې واچیو سوس دا غریبه خو وای چې خدي نو جدا وا کیا بات ہے لګو ګورو چې دې څه کتلی دوه سپوره مونږ ته موقع کنا پلیز د پیښور خلکو نن مزه ټرای کوم افغانستان یو خوندور خوراک اغم په پیښور کې जी तवेली से अगवानी चली की मटन कम सी बगैर मसालों न तैयारी की तासु दी की मसाले वाली न वाचे मसाला सरा स्पष्ट दुश्मनी दा دې سره زمونږ ځکه دښمني ده ځکه چې دا ستاسو صحت دپاره نه دی ښه دا جوړیږي صرف سلور انگریڈینٹس نا اور قیمت کی هم ډیر مناسب دی पदी खुराक की मटन टमाटर प्याज और लक्षान ऑयल अची और ब्या 2 घंटों की पदम बांधी पकोलो पखी तैयारी दो नपस दडे टेंडर और जूसी शी चने की मटन मा हम फर्स्ट टाइम ट्राई को नु सम खोन दी उकू बाचा शिम चाय पसिस्ता ता खुराक कोलो दपारा तासु हम राशि शुभ चौक सखी रेस्टोरेंट ता पिशोरी कल्चर इच कुछ और होवे ना होवे ए ता जरूर होंदे कदी चाचे दा कुल ते कभी एनी द वे मौका चाहे गम दा होवे या खुशी दा चना मेवा जरूर होंदे वो भी सादा नहीं अच्छा खासा गोश्त भर के वरना आंटी जुलेखा खफा हो जाती है और जहाँ रहमान गुल के चावल हो तो इसमें आपको सब कुछ ज्यादा ही नजर आएगा चाहे वो गोश्त हो या चना मेवा का मसाला सब कुछ ऐसे अंदाजे से डाला जाता है कि खान तो बाद ना त्वाड़ी मासी खफा होसी ना त्वाड़ी फुप्पो और टेस्ट ओए होए कमाल दिन की रोशनी में 24 से 25 देगे बिक जाती है और पिशोर द बच्चा जानता है सब तो मजेदार चोल रहमान गुल देने और आखिर इस पिशोरी कावा कैसे भूल सकते हो तो ये खाने के लिए आज और सुबह बाजार क्योंकि इत्थे चना मेवा ते चौल दोनों ही दिल जीत लेंदे ने ਚਣਾ ਮੇਵਾ ਦੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾਓ ਤੇ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਣਾ ਮੇਵਾ ਦਿਖਾਓ ਔਰ ਬਿਆ ਸਹਰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਵਾ ਪੀਸੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਸੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੀਓ ਸਰ ਜੀ ਠੀਕ ਸ਼ਵਾ دا څه کې دا چرته ګرځي دا خوراکونه کې پتا خوړو سر نشو لکه دا عالیا دا دومره خوراک کوي او نه غټیږي دا ستم ماشاءالله ښکاري तो आपने सर दे के दे सर उर्दू के खबरें को ना वले दे خپل پښتو ویل کنه یالته پښتو सर दे ویل کنه سکرپټډ ویل زما پختو گلابی دی خیر ده خون کې ما دومره خون کې دا خلک به سم لوګړي چې ته پښتو ویل کنه خوشاله نه کنه او کنه نو دا تاسو شروعات څنګه وکړلای دا نو ولی خوراکو په دا ویلاګر جوړ شوی मुझे बचपन से खाने का बहुत शौक है और खाने का था नहीं तो आपने कहा मैं कहाँ जाऊँ और कंटेंट बनाने का भी बहुत शौक है लेकिन जो हमारी फैमिली है ना तो उन्होंने परमिशन नहीं दी कभी तो जैसे मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की मैंने कहा कि बस पहला काम ये करना है तो मेरे पेरेंट्स माशाल्लाह बहुत सपोर्टर हैं तो उनकी वजह से मैंने स्टार्ट किया और बहुत लोगों ने प्यार दिखाया और बहुत अच्छा जा रहा है हम ته سوخي داسې کانې چې تاسو ورغلي او تاسو په خپل هم حیران شوي چې او یا کاش چې زما امیم داسې پخلی जी जी داسې پخلی چې تاسو ډېر زیات متاثره کړي जी पेशावर में तो जिस तरह गोश्त बनता है ना वो कहीं भी नहीं है और खास तौर पे मैं नमक मंडी साइड से हूँ नमक मंडी का जो गोश्त है वो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा Very true. तो उस तरह का गोश्त वाकई में बस बंदा खाता है और हम तो ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं तो बस यही अच्छा ये बताइएगा कि मतलब आप साथ में स्टडी वगैरह भी करती हो या जस्ट फूड व्लॉगिंग करती हो जी मैं एमफिल कर रही हूँ स्टैटिस्टिक्स में माशाल्लाह ये तो दोनों ही अलग अलग मेरा 3rd सेमेस्टर है मैं स्टूडेंट हूँ एमफिल और हम स्टैटिस्टिक उनको बदल फील्ड है सर का नाम गड़ा वड़ा रहा मूंगा हमें जबरदस्ती दिया गया था स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स और मैंने सिविक्स साथ लिया था क्योंकि मैंने कहा यार ये कॉम्बिनेशन तो बहुत स्ट्रांग है तो सिविक्स में नंबर बन जाते हैं ठीक है अब तो सिविक्स नहीं होती शायद पहले तो होती थी तो नवागदा चलो सोचिए
स्टैटिस्टिक केम फेलो मा और इकोनॉमिक्स को मेरा टा लागू ले वगैरह ना सर आगा मुझ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दरमियान चे कोविड रा लाइनो इवे चे टीचर्स मुझ देर ज्यादा कोई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दरमियान में कोविड आ गया नो मुझ तलिश की इजी सा बस पेपर पास हो जाओ बस तुम ठीक है एग्जैक्टली व्हाई स्टैटिस्टिक्स मुझे बचपन से मैथ्स बहुत पसंद है। मैं और किसी सब्जेक्ट में अच्छी नहीं हूँ सिवाय मैथ्स के। आपको और क्या क्या पसंद है बचपन से? तो मेरे मार्क्स भी सबसे ज्यादा मैथ्स में ही आते थे ना, माशाल्लाह। तो मैंने वैसे मेरा यही शौक था कि मैं मैथ्स में ही आगे जाऊँ, लेकिन फिर मैं जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने लगी तो सबने मुझे यही कहा स्टैटिस्टिक्स की तरफ जाओ, आगे डेटा साइंस और एआई का दौर है। तो बस फिर मैंने स्टैटिस्टिक्स ले ली और उसमें इतनी अच्छी चली गई कि मैंने एमफिल भी स्टार्ट कर लिया। रियली वेरी नाइस। अपनी यूनिवर्सिटी में मेरी 3rd पोजीशन आई थी बीएस में। माशाल्लाह। और साथ में ये फूड व्लॉगिंग जब आप करती हो और साथ में पढ़ाई भी करती हो तो मुश्किल होती है कि नहीं? बहुत मुश्किल तो होती है, क्योंकि मैंने पहले तो मैं कर रही थी वैसी गपशप में, लेकिन अब मैंने सही स्टार्ट किया तो काफी मुश्किल होती है। इवन टीचर्स भी ताने देते हैं, मैं अभी रिसर्च वर्क कर रही हूँ ना, तो टीचर कहते हैं आप एडवर्टाइजमेंट बाद में करना, पहले रिसर्च करो। तो ये चीज है। और ये आपने स्टार्ट कब लिया इस फूड व्लॉगिंग का, मतलब कौन मैंने से? ठीक तरीके से मैंने मई में स्टार्ट लिया, अभी 3 to 4 मंथ्स हुए मुझे। और इसके दरमियान कोई चैलेंजेस या मुश्किलात वगैरह पेश आते हैं बहुत कि सारी, क्योंकि मेरी जैसी फैमिली है ना, तो वो सारे बस पढ़ाई और जॉब इस तरह, और मेरा बचपन से मेरा ये माइंड ही नहीं है जॉब करूं, मैं किसी के अंडर काम ही नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ बस अपना काम करो, ऐसा कोई काम हो जो मेरी मर्जी पे हो। तो फिर मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। अब जो मेरी फैमिली में जॉब कर रही है ना, जो मेरी एज की लड़कियां हैं, उनसे डबल ट्रिपल मैं कर लेती हूँ, अर्न कर लेती हूँ। तो ये चीज है। ये तो बहुत खुशी की बात है, ढेर खुशहाल है खबर। जमंगा माशुमाने गोरे समरता कड़श जी बिल्कुल सर। उस दा सुगुर दी तो सुगुर और केपीके वाले पराकम मुफ्त कई ओ तालीम हम कई गया दे माशा पैसे में तने घटी माशाल्लाह भी ब्लॉग्स में। इसमें मजा भी आता है, आप अपनी मर्जी से काम भी करते हैं, लेकिन मेहनत भी बहुत है। बहुत मेहनत और एक लड़की के लिए बहुत चैलेंजिंग है जब वो फूड स्ट्रीट कवर करती है, वो भी पेशावर में। जब भी हम जाते हैं ना कोई भी कंटेंट बनाने ना, लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, स्पेशली पेशावर में। तो ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। और फिर जब लड़की बनाने लगती फिर तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी ये क्या हो रहा है भाई। मतलब लड़का तो फिर भी बनाए तो चलो खैर है ना, लड़की फिर तो जानबूझ अगर समझ आ भी रही हो तो कहते नहीं यार मैं जरा देखना चाहता हूँ ये क्या बना रही है, लेकिन उसे सही पता होता है कि क्या अब समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूं। सिर्फ देखने के लिए ना, बिकॉज वो है उनमें हम लोगों में थोड़ा सा बाड़ा बतर जमसिया ताना बचे कुमशा है जोड़वे एक्सरे या बजे वाई बस या गुड़ जब बदल हम तनवीर सी जदा तो कुम मकसद पार रहा गले अपनी बेवाजी कड़ी ऐसी यार साइड पे हो जाओ, बच्ची को काम करने दो। खैर एनी हाउ गुड, वेल डन, शाबाश, देर खैर। सवाल बताओ यार क्या हो चल रहा है आजकल? बस वो देर ज्यादा मुंगसरा माशाल्लाह शोज के रागली यही करा जी। और मैं सेकंड टाइम आप लोगों के साथ आया हूँ। लास्ट टाइम आया था तो मैंने बताया था कि हम लोग एक एआई ऐप पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान की फर्स्ट एआई की हेल्थ की फील्ड में एक ऐप होगी। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट कर ली है। हम उसके अभी लॉन्चिंग फेसिस में है, तो इंशाल्लाह कमिंग मंथ में हम उसको लॉन्च करेंगे। हेल्थ की फील्ड में? एग्जैक्टली हेल्थ की फील्ड में सिर्फ। हेल्थ की फील्ड में जैसे कि मतलब लेट्स से आप पेशेंट है और आप तो बिल्कुल नजर जी मेरी पश्तो इनसे भी ज्यादा बुरी है। मैं बेसिकली पिशोरी हूँ। दोनों पिशोरी है मुझे पता है। तो हमारी पश्तो गुलाबी है, मेरी पता नहीं घर से नहीं स्ट्रीट नहीं जी, स्ट्रीट भी है कि नहीं है? नहीं दूर चलो है। शुक्र है। अच्छा तो हमने उसको बेसिकली वो काम कर रही है हेल्थ की फील्ड में। जैसे आपको कोई मसला होता है, आप एक जस्ट वॉइस नोट करें जैसे आप डॉक्टर से बात करिए, बट आपको रिस्पॉन्ड एआई कर रहा होता है। तो ये आपको रिस्पॉन्ड करता है और वो आपकी डायग्नोसिस करके आपको एंड टू एंड सोल्यूशन बता देते हैं, आप फलानी मेडिसिन ले या फलानी प्रिकॉशन ले। किस में बना रहे हैं? C++ में बना रहे हैं? नहीं, ये सारी जावा बेस्ड है। ओरेकल ओके जावा बेस्ड है। और इसमें कोबोल अभी भी यूज हो रहा है? नहीं कोबोल नहीं, ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई, अभी यूज़ नहीं हो रहा। यार देखो यार मैंने कोबोल में बनाया था प्रोग्राम, ठीक है, एंड इट वाज सो टफ बिकॉज उसमें बहुत लेंथी आपको सारा प्रोसीजर लिखना पड़ता था, एवरीथिंग। और शफीक साहब अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, वो हमारे टीचर थे सीकॉज में। उस वक्त सीकॉज सिर्फ सदर में हुआ करता था। सो आई मेड माँ से जोड़ कड़ा माँ पूरा द मैरिज ब्यूरो ये वागा जोड़ कड़ा होगा ना ऐप जी जी आगा वक्त की। एंड देन उसमें यह था कि आपको
जैसे एक लड़का है एक लड़की है तो उनकी सारी वो लाइक्स डिसलाइक देखता था और उस पे आपको रिकमेंड करता था कि नहीं आपके लिए ये बेहतरीन है। अब फिर उसके बाद सर इसका क्या बना? बस उसके बाद मेरी शादी हो गई। वो पता चल गया उनको कि ये ऐप क्यों बना रहा है। हाँ। इसका मतलब है उन्होंने कहा इसको बांध दो। फिर उसके बाद सर कार मुप्रीद वाला फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। शवाल زمونږ دلته زه پښتو کې تاسو بیا په اردو کې زه صرف دغه وایم چې یاره زمونږ دلته ینګسټر چې کوم دي کنه هغه په کمپیوټر فیلډ کې بې حده تیز دي خو دلته هغه شانتي هغې ته سپورټ نشته دی لکه چې څنګه اوس هغه کې دی انډیا کې دی هغې پراپر یو ښار هغې دپاره آباد کړی دی او هلته نه پوره لاټ هغه ځي او سیلیکون سټي ته ځي ټیک شوه نو داسې هغه نشي کېدی زمونږ دلته ज़की भाई इसमें मेरी जो ओपिनियन है वो ये है कि हमारे मुल्क में इनकॉम्पिटेंसी का बहुत बड़ा मसला है। जो लोग अपर सीट्स पे फाइज होते हैं जो पोजीशन पे होते हैं जिनके हाथ में इख्तियार होता है सारा कुछ करने का मुझे ऐसा फील होता है कि वो इनकॉम्पिटेंट है। उनको अपने काम के बारे से हवाले से पता ही नहीं है। उनको ये नहीं पता मैं जिस सीट पे बैठा हुआ हूँ इस सीट की कितनी पावर है और मेरे पास क्या क्या इख्तियार है मैं क्या क्या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में लेकर आ सकता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो आजकल ये भी है ना कि स्टूडेंट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की साइड की तरफ नहीं जा रहे हैं कि इसका स्कोप नहीं है और हम इंजीनियरिंग क्यों करें, जैसे कि जिसके साथ इंजीनियरिंग का वर्ड जुड़ा हो तो उस साइड पे नहीं जाते। तो क्या स्कोप है पाकिस्तान में? बिल्कुल ऐसा है। इवन तो ये बच्ची स्टैटिस्टिक्स में एमफिल कर रही है। फील्ड हर चीज़ का स्कोप होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट ये होता है कि हमारे जो यंगस्टर्स है हमारी जो कमिंग जनरेशन है जेनजी वगैरह ये इनका माइंड काफ़ी डाइवर्ट हो गया है। उसका रीज़न ये है कि सोशल मीडिया की पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, आप पाकिस्तान में बैठ के किसी इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर को देखते हो, ठीक है, आप देखते हो जी वो हफ्ते में $1 मिलियन कमा रहा है। तो ये सारी जनरेशन इस चीज़ के पीछे लग गई है। वो इजी मनी ग्रैब करने के चक्कर में है। तो इजी मनी ग्रैब करने के चक्कर में वो लोग उनको ये लगता है कि जी हम डिग्री करेंगे उसके बाद हम जॉब करेंगे तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस होगा। तो ये एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है हमारे मुल्क में या हमारी जनरेशन में चल रही है ना। तो स्कोप है बिल्कुल। इवन तो मेरे जो जूनियर्स हैं मुझसे बहुत सारे लड़के सीख के आगे गए हैं और वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक लड़के ने एक स्टार्टअप कंपटीशन विन किया और उसको दुबई में अपॉर्चुनिटी मिली अपना आइडिया पिच वहाँ पे करने की। तो ऐसा नहीं है, इस फील्ड में काफ़ी स्कोप है और इवन तो फ्यूचर भी यही है। बट ये है कि ये जो डिस्ट्रैक्शंस बन गई हैं और आगे से सपोर्ट नहीं है तो मेरे ख्याल से ये इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स इस फील्ड में नहीं आ रहे। जैसे कि आप लोग अभी AI ऐप पे काम कर रहे हो तो इस हवाले से आपको फैसिलिटीज़ वगैरह मिल रही है? नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें सो फार कोई ऐसे सपोर्ट नहीं मिली। स्पेशली मैंने शायद लास्ट शो में भी ज़की भाई को ये फरियाद की थी। लेकिन वन ऑफ माय फ्रेंड्स वो तो आप जानते होंगे समी फ्रॉम कनाडा, उन्होंने तो पूरा अपना एक सेटअप बनाया हुआ है और KPIT के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं वहाँ पे। और अलते ग्राउंड को तुमको dear youngsters दासी नीचे अलते की नूली दी and they are doing different softwares पे काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स मुख्तलिफ है उनके पास, उनको वहाँ से रन कर रहे हैं, उनका सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं। फिर वो क्या कर रहे हैं, मतलब KPIT क्या कर रहे हैं? अच्छा, KPIT बोर्ड का जो रोल है मुझे लगता है कि वो फुली प्ले नहीं कर रहे टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, मैंने मेरी टीम ने 2013-14 में ये ई-हेल्थ का प्रोजेक्ट हमने पिच किया। उस टाइम डॉक्टर शहबाज दुरानी साहब डायरेक्टर होते थे। जी बिल्कुल। उस ज़माने में जिस टाइम ज़माने में डीन स्मिथ का ऑफिस होता था, तो वो हमने पिच किया, हमें वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं आया। फिर सिमिलर प्रोजेक्ट एक तो ज़की भाई सबसे बड़ा मसला ये हम अपनी गवर्नमेंट साथ कुछ करना चाहते हैं, KP के पेशावर के लोग, हमें वो सपोर्ट नहीं मिलती। एक्सटर्नली कोई लाहौर से आ जाए, कराची से आ जाए तो वो उनके लिए सुपरमैन होता है। ठीक है, उनको स्ट्रेट अवे जी आप ये प्रोजेक्ट करें, आप ये प्रोजेक्ट करें। मतलब मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगा कि मेरे एक यूनिट की कॉस्ट, एक ई-हेल्थ सोल्यूशन की या टेलीमेडिसिन क्लिनिक की कॉस्ट उस ज़माने में 2 मिलियन थी। सही, ठीक है, उन्होंने जो लगाया तो उनकी आप वेबसाइट पे देख ले, मतलब 100 टाइम्स उनसे तकरीबन ज़्यादा था। और वो प्रोजेक्ट फेल्ड भी हुए हैं। फिर
उसके भी मल्टीपल रीजन है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि जी सवाल दाव मा खबर है घर की मुरी दाल एग्जैक्टली यकीन के वही चीज़ हमके सरहद की जिंगा प्रोग्रामर्स थी यू कैन नॉट इवन इमेजिन व्हाट दे कैन डू मा सर दलता एहसन दे द आईटी वाला ही इज सच अ जीनियस और अगी सर कल कल जची खबर को मा दुमरा पोटेंशियल दे दी अल्लाह कानू जना को बिल्कुल सर डेज वो मसला उमदा गदा ची सोक पे अगर ट्रस्ट अगर होता ही ना वग न पटपई वक्त आओ सर मुई पछतो छे मरवा तो चते ही मरवा तो किदा वही ची वक्त न पटपाई मतलब नहीं आरबिया अगर टपे बच्चे कोल कना खलको अवल आओ तवज्जो न वर कैसे तवज्जो न वर के एग्जैक्टली वक्त पे टपई लकची तवज्जो पे न वर के बिल्कुल but anyhow this is something beautiful that I have learned today what pe na chapawi means tawajjo na work बिल्कुल बिल्कुल good one जी मलाइका मलाइका मा दा त पोस्ट कवला सर ज चे अवल नास्ता मा अवल ज बदीन दा त पोस्ट कवना चे मुश चे द फूड ब्लॉगर चोर माइंड चे राजे नो मुश दावा यू चे लक चोर रेस्टोरेंट सी आरू वाड़ी नो दोता पेमेंट की नो आ जस्ट का खाना न हम मजेदार है वी कना जायका ने आगा खुरी आवाई चे डेर यमी टेस्टी दा नो तसो दा से कहू कत लका या दा से फूड स्ट्रीट्स तला सो पपला जई घर जई ओ कना पेड कंटेंट हम भी डेफिनेटली देख से अगर नाइस था हो व्हाट इज दे आल्सो हैव टू रन देयर चैनल कना विद पारा नो ददीदा क्वेश्चन यस मेरा ज़्यादातर होता है हम फूड स्ट्रीट जाते हैं तो हम खुद ही पे करते हैं, खुद ही पहले हम जाते रिसर्च करते हैं, खुद ही पे करते हैं। जी जी हम जाते हैं पहले देखते हैं वो खाना अच्छा है नहीं, फिर हम प्रॉपर कंटेंट बनाते हैं उसका। और अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं होती तो हम वो दिखाते ही नहीं है। हम ये नहीं कहते कि ये अच्छा है, और किसी को बुरा कहना भी गलत है। आप किसी का कारोबार खराब करें तो हम ये नहीं दिखाते कि वो बुरा है, बस हम उनको बता देते कि इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहिए बस। तो हमारा ये होता है। और जो लोग मतलब पे कर लेते हैं कि हमारे मतलब उसके रेस्टोरेंट कंटेंट को आए अच्छा कहें, सेम हमारा उसमें भी यही होता है कि हम ये नहीं कहते कि ये अच्छा है बुरा होने के बाद, हम उनको समझाते हैं कि चीज आपकी चीज ठीक नहीं है, और हम उसको बताते ही नहीं है जो चीज बुरी हो उसको शो ही नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए रिस्पेक्ट भी होती है इंसान के दिल में। जैसे रोनाल्डो है तो ही इज अ ग्रेट फुटबॉलर, उससे ज्यादा अच्छा वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग है। वो एक कोल्ड ड्रिंक है उसको वो अप्रूव नहीं करता तो उसके बारे में बात भी नहीं करता, और वो कहते हैं जहाँ पे मैं बैठूँ इसको रखना भी नहीं है आप लोगों ने, क्योंकि इसकी वजह से फलस्तीन बच्चे मर रहे हैं, बिकॉज उनको वो पेमेंट हो रही है ना एक तरह से। जी जी सो ब्रेक है मेरा ख्याल है जी सर जता सुवालिनो सही दे जकी साहब वाल खबर सर वही वडू के शान दमा वाखलू जी वापस रेसू दे मां मान दे नंदा बुजुर्गे गैब पखीर आमाद लाइसेंस एग्जैक्टली सर। और स्टैंप लगम स्टैंप यार बत्ते जान ला प्रोग्राम को जान जी माशाल्लाह जी वेलकम बैक। और मुंग सर दे वक्त नास्ता जी आलिया और मुशरा एग्जैक्टली सर। और दे सर मुशरा नास्ती मलाइका और शवाल ओ शवाल तासु दिन तपो स्कूल ब्रेक यार जो हैरान शुमा आपने तो बड़ी तरक्की कर ली है माशाल्लाह यार। सो हां और खपल कार हवाली सरता सोवील चे देवल तास तो चे इनपुट मिला सलाह द चे मतलब तासो कुम अवार्ड्स या दसी च प्राइम मिनिस्टर ना माशाल्लाह। सो फार 4 अवार्ड्स हम विन कर चुके हैं नेशनल लेवल पे, और जिसमें से सबसे बड़ी एक्नॉलेजमेंट जो मुझे फील होती है वो प्राइम मिनिस्टर नेशनल इनोवेशन अवार्ड था, जो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला था 2023 में माशाल्लाह। तो इसके लिए तो क्लैप बनती है भाई शवाल। तो हम वाहिद थे पिशावर से और अपने केपी के सूबे से जिनको मिला, तो हमें बहुत अच्छा फील हो रहा था क्योंकि 7.5 लाख पार्टिसिपेंट ने अप्लाई किया था थ्रू आउट पाकिस्तान, तो उसमें से 300 फाइनलाइज हुए थे, फिर 300 में से 50 फाइनलाइज हुए थे, तो 10 विनर्स थे। तो हम वाहिद थे केपी से पिशावर से जिनको मिला था माशाल्लाह। तो अपने सूबे के लिए एक अवार्ड लेकर आना वो हमें मतलब बहुत खुशी होती है यार। आपने सिर्फ बताया हम दिल दुमरा खुशहाल है यार माशाल्लाह माशाल्लाह जमुगा यो माशूम चदे आगा तले दे। और क्या क्या रिकॉग्निशंस थोड़ी बताएं हमें। अच्छा इसके अलावा रिसेंटली अभी एक यूएनडीपी का प्रोग्राम था एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन अवार्ड, वो भी हमने विन किया। और इसके अलावा एक पिक्स कॉम्पिटिशन। तो आप कहते हैं हमने, तो इसमें कौन आप तो है ही हैं। हाँ मेरी साथ पूरी एक टीम है, ठीक है। शायद मेरी एफर्ट बहुत कम होती है, उनकी एफर्ट बहुत ज्यादा होती है, मैं तो फ्रंट पे आ जाता हूँ खाली। हाउ हम्बल ही इज, लुक एट हिम। तो पूरी एक टीम बैठी है काम कर रही है हमारे साथ, और बहुत मेहनती टीम है, और
हम लोग जो मेरी जो टीम है उनकी कोशिश होती है दिन रात वो एक लगाते हैं। हम इवन रात के 2 बजे भी हमारी किसी ऐप में कोई टेक्निकल मसला है तो हम उसको रात को 2 बजे भी रिजॉल्व कर रहे होते हैं। तो मुझसे ज़्यादा मेरे ख्याल से क्रेडिट मेरी टीम को जाता है जो इस सब प्रोजेक्ट को मैनेज कर रही होती है। माशाल्लाह, वेरी नाइस यार। शवाल आपने 10 दल तयवा खबर उकड़ा करना एआई हवाले सर माता सर तपोस उकड़ा चाहिए चैट जीपीटी अगर फॉर एग्जांपल हम उसमें कोई अगर टेस्ट वगैरह की पिक्चर लेके उसमें डाल देते तो वो बता देते हैं कि आपको ये बीमारी है, आप ये चीज़ इस्तेमाल करिए इस तरह। तो ये ऑलरेडी हेल्थ फैसिलिटी तो दे रहा है एआई। तो आप जो ऐप बना रहे हो तो चैट जीपीटी और इसमें क्या वो डिफरेंस अच्छा, है? इसमें एक तो डिफरेंस ये ना चैट जीपीटी का क्योंकि फ्री वर्जन है उसमें एक लिमिटेड ईयर्स तक की इंफॉर्मेशन है, उससे अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके। हमारी जो ऐप है उसमें ऐसा नहीं है कि जी आप प्रीमियम वर्जन ले तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। दूसरा हमारी ऐप जो स्टैंड आउट करती है वो 2 पॉइंट्स पे करती है। नंबर 1 हम लोग सिर्फ हेल्थ की नीश में प्ले अराउंड करते हैं, मतलब आप हेल्थ के अलावा हमारी ऐप से कोई क्वेश्चन पूछो वो आपको आंसर नहीं करेगा। नंबर 2 हमारी जो ऐप है वो मल्टी लैंग्वेज है। आप उससे पश्तो में पूछें, सिंधी में पूछे, बलूची में पूछे, उर्दू में पूछे, इंग्लिश में पूछे, वो आपको सारी जुबानों में रिस्पॉन्ड करेगा। और जैसे कि अगर आप लोग के ऐप जो है उसमें मतलब बीमारी को जो तशखीस करते हैं या फिर उसके बाद उसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह भी बताते हैं हेल्थ के हवाले से? हाँ बिल्कुल ट्रीटमेंट बताते हैं। जैसे कि एक प्रॉपर एक डॉक्टर बैठा होता है। जी, बेसिकली मेडिकल के आप जैसे को पता है एक स्टेजेस होते हैं, कुछ क्रिटिकल केसेस होते हैं जो विदाउट सर्जरी या विदाउट डॉक्टर के चेक करने के रिजॉल्व नहीं हो सकते। मतलब आपका ऐप जो डॉक्टर है वो जनरल प्रैक्टिशनर है? हाँ, एक तरह से जनरल लेवल पे उसको बताते हैं। जब कोई डिटेल्ड हो, कोई सर्जरी लेवल का मामला हो तो लाजमी बात है फिर वो उसको फिर तो हमारे पैनल में जो डॉक्टर उनके रेफर कर दे तो उनके अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं। ओके। अम्मी अब्बू को जब पता चला कि बेटे ने ऐसा एक ऐप बना लिया है, उनकी तो ख्वाहिश थी अब डॉक्टर बन जाएं कि उनको मुफ्त इलाज मिले, आपने ऐप बना दिया, आपने ये लो फिर। मेरे वालिदैन की बड़ी ख्वाहिश थी, मेरी बड़ी बहन है कि वो डॉक्टर बने, बट वो नहीं बन सकी व्हाट्सएवर रीजन की वजह से। तो मैं जब ये करता तो मेरे पेरेंट्स मुझे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कम बताते हैं, कहते हैं यार इसको मेडिकल कोई मसला होता है इसे पूछ लो या तो होते ना घर में कोर्स योदा से कसी चे मल्टी टैलेंटेड या नोरा कारूना हम वो सरा कया अगर सेहत शोबे सरा दाले दूर दूर तक वास्ता बिल्कुल नहीं खोचे वर से कना द का गाश चे दर्दी द टैबलेट वाखला स्टमक वाला द टैबलेट वाला आज हम ये त्रोर वागे बटूल टैबलेट आखिस्ता अर्स बच्चे से मोराला मखिला मैं वली द तसके त्रोरी वैसे सको बराकी टिक्की एग्जैक्टली सर दा बिल्कुल देर ज्यादा से खलको चे सरी अब खास कर वक्त नहीं खलको चे दा मसला और अक्सर दा सकी लगे जी फॉर एग्जांपल उस पसारे दर्द दी ना नो मा से और दा बंटीज नहीं जी नो त्रो मेरा गली बची दा से पसार दे ना मैं बंटी को ओबम वाला वर्की अरे चलो बेर दा सर दर्द में खुशो ला बंटी दन्नम ना होता ले साइकोलॉजिकल बिल्कुल यकीन महीने चे बचे शिमांदी यकीन रावड़े आगा से बैकी जी वो सारा बिल्कुल हां मलाइका उस मसला दा से दा ना चिलका दे खुद सॉफ्टवेयर जोड़ी ना एम फिल बायो साइट तक बट दा उस तासु यो आगा दे फील्ड दे दा व्लॉगिंग चे कम दे बिकॉज़ दा दुमरा वास्ट दे दा you can go to different cities and different countries or the khalko food or people places their faces different faces no arsut ko katesh kana no do you have any plans like this or kashta de no the khpal chikam muashada la family da against support what do you think silsila se ख्याल करे? ऐसा है कि मैंने जो स्टार्ट किया सिर्फ 3 मंथ्स में, इसमें जो मुझे जो मेरी फैमिली जो है मेरे पेरेंट्स उनकी तो बहुत सपोर्ट है, लेकिन जो मेरे रिश्तेदार हो गए आउटसाइडर्स तो वो बहुत बुरा भी कहते हैं मुझे कि आप ये गलत कर रहे हो ना, आपने इतनी एजुकेशन की है। लेकिन मैं बस अपनी पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से कर रही हूँ क्योंकि मेरा इसमें शौक है। मुझे लगता है इंसान को वही करना चाहिए जिसमें उसका दिल हो, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी अच्छे प्लान्स हैं मेरे। अच्छा फॉर एग्जांपल आप यहाँ के पीके में घूम रही हो, व्लॉगिंग जोड़ा होगा, फूड व्लॉगिंग का वो लग गया हो no tasta irada stada tasta parents permission dar ki zaka chada food vloggers ki different cities te ji like for example dal tawal ke pk wal taso vlog jod kar pakane mande be wo chiz de lahore ta hum lada sa al tade kanes explore कर दे हवाले से रहता सब पेरेंट्स ले तरफ ने परमिशन मिला। यही मैं पूछ रहा हूं ना कि वो मेरी जो मम्मा है ना वो मेरे साथ हर जगह जाती है, हर जगह जाती। अभी रिसेंटली हम गए थे पिंडी गए थे
यही व्लॉग बनाने, हमने कोलैब करना था। तो मेरे साथ मेरी बड़ी बहन गई थी, मेरे बाबा भी उधर थे। तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, मेरे साथ जाती है क्योंकि उनको पता है मैं बहुत शाय हूँ, मैं नहीं जा सकती अकेले। तो वो मेरे साथ जाती है, वो देखती है कि हाँ ठीक करी, कुछ गलत नहीं करी, तो इसलिए वो मुझे सपोर्ट करती है। और तासर द कैमरा वर्क दा चौकई दे सरच ये बस सिस्टर्स हो गई, कोई भी मिल गया बस बना लेते। मेरा इस तरह प्रॉपर कोई टीम नहीं है ना। ओके जी ग्रानो गदर को तासु माशुमान इंटरेस्टेड ही पा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के, सो यू कैन कॉल इन तासु कॉल कोलेशी और शवाल ना डायरेक्ट तपोस कोलेशी। बेटा आप भी अगर घर पे इस वक्त बैठे हो और कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो शवाल से, आप पाकिस्तान के किसी भी एरिया से ताल्लुक़ रखते हो, दुनिया में कहीं से भी हो, और आपको है कि यार मैं भी कुछ करूं, बिल्कुल, बिकॉज इन्होंने तो अपना ऐप निकाला है, और क्या नाम है उससे? इलाज घर। तो दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल, बहुत इम्प्रेसिव इन्होंने काम किया है। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी इनको अवार्ड मिला, इसके अलावा बहुत और यूएनडीपी से भी इनको मिला। सो आई थिंक वो रिकग्निशन जो इनको चाहिए थी वो ऑलरेडी इनको मिल चुकी है। अब इनका काम है कि आगे लोगों को बनाएं, ठीक है ना? ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है। अगर आप कतस द फूड हवाले से तपोस को वाड़ी ब्लॉगिंग से स्टार्ट की दाब मुंगम मलाइका ने तपोस को, मलाइका एक लड़का है या लड़की, उसको ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, अब उसका दिल भी करता है लेकिन उसको समझ नहीं आ रही मैं करूं क्या, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? मैं बस यही कहूंगी कि कैमरा लो, बस शुरू हो जाओ। कैमरा मतलब कैमरा, मोबाइल उठाओ, वीडियो बनाओ, डालो। ठीक है, अब मोबाइल, बस सिर्फ मोबाइल होना चाहिए या एडिटिंग वगैरह मोबाइल। अच्छा इस तरह है ना कि अब स्टार्ट से तो कोई इतना प्रोफेशनल या एक्सपर्ट नहीं होता है ना, तो आपने बस सिंपल आपके माइंड में जो भी आए ना, लेकिन पॉजिटिव हो, ठीक है। आपने बनानी है वीडियो, थोड़ी बहुत भी एडिट हो उसके साथ डालनी है, ठीक है। फिर टाइम टू टाइम आप ऐसा ऐसा सीख जाते हैं, कोई भी स्टार्ट से प्रोफेशनल नहीं होता। मैंने भी इस तरह स्टार्ट किया। बिल्कुल। और तासो चे दा तासो चे कला दा मतलब एडिटिंग कवला या तासो वीडियोस जोड़वला तासो ऑलरेडी अपलोड मोबाइल, जी यू नो ऑल द एडिटिंग स्टफ प्लस योर वॉइस, ये क्या आप मोबाइल में जनरल ऑडियो में जाती है या माइक लग, क्या करते सारा कुछ बताया। ट्रेनिंग बस एक मोबाइल है और बस इसी में मैं रिकॉर्ड करती हूँ। घर में जब सब सो जाते हैं, खामोशी होती है, तो मैं अपना वॉइस रिकॉर्ड कर लेती हूँ इसी में। और एडिटिंग में लेकिन जो वीडियो में वॉइस आ रही होती है वो तो नहीं कर सकती ना, वो तो आपकी अपनी होती है। जी वो मेरी अपनी। लेकिन आप अगर वॉइस ओवर करना चाहते हैं फिर आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। जी वो रिकॉर्ड करते हैं। और इस तरह एडिटिंग भी मैंने मतलब शुरू से स्टार्ट किए। कैपकट है एक ऐप, वो बहुत बेस्ट है, सिंपल ऐप है। उसमें आप यूट्यूब से एक दो वीडियोस देखें, आपको सारी एडिटिंग वो बता देते हैं। बस आप स्टार्ट कर लें। अच्छा प्रॉपर न क्लासेस एवर ताखिस्ती दी बस जस्ट यूट्यूब ते लाडला अलता वीडियो प्ले कराज आओ बिल्कुल फोन मांदे लाडला नो अलता उ कतल चे चरेंगे दा एडिट कीजिए प्रॉपर वा वीडियो तासु कतल के ना एडिटिंग वाला चे एडिटिंग वाला प्रोसेस चरेंगे दा बे ईगा बाद आओ करा और दे मदा खबर है ची आया हम इसको आपका फ्यूचर समझ सकते हैं, मतलब बड़े लेवल पे अगर आप करना चाहें। जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह। दैट्स वेरी नाइस। आता सवाल मतलब तासो उर्दू तासो वाई चे जो उर्दू स्पीकिंग या तासो उर्दू चे व्लॉगिंग को या पश्तो चे को और तुम हां वो ना अमी वर्ता फोन को मेरा नाम क्यों लिया आपने कि मैं आपके साथ जाती हूं। मेरा आराम मैं इस टाइम सो के उठती हूं। आई नो कि इस वक्त भी वैसे सर यो खबर तुम सोचो कर दे वही चे मैं इस टाइम सो के उठती हूं दा टाइम चे गेट इनको प्रोड्यूसर साहब इनकी अम्मी को कॉल मिलाएं, हम उनसे बात करना चाहते हैं। नो दे अवल मिले चे ज जॉब कवल न वाना अंड बच्चा अंडर कार न सकल दे गोर पखपल पखो मानी विशेष नौकरी न को लगाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी थिंकिंग है आपकी, अच्छी सोच है। बिल्कुल। दे सरदार तो हुआ है चे तासो कले दा सोशल मीडिया बांदे खपल वीडियो वाच वाला कना पोस्ट मकड़ला नो दे मांदे जायरी खबरदार चे तासो रोक कारू को सोशल मीडिया मांदे न सबा ओस आगा माइंड चेंज सलायदा खलक तारीफ हम कई तनकीद हम कई नो तास दस नेगेटिव कमेंट्स सरा या गसरा खबर जायरी खबर दा वास्ता रागली नो आता सोचेंगे बे हैंडल को वो मैं इग्नोर करती हूँ। इग्नोर करती कभी कभी क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उसमें ऐसे मजे की बात बताती हूँ। मेरी पश्तो की वीडियो होती है तो कमेंट्स भी पश्तो के होते हैं, मुझे समझ ही नहीं आती लोग क्या बोल रहे हैं। मैं लगी हुई हूँ। वाह जी वाह, दा प्लस पॉइंट है सर। दस खबर जारी साथ बिल्कुल। दे सर दर तो हुए चे मतलब तासो चे अवला पश्तो वीडियो वाच अवला नो ई गवल व्यूज ज्यादा या अखवाल
मतलब उर्दू वाली वीडियोस वाल? टिकटॉक की ऑडियंस को पश्तो पसंद है तो वो मेरी पश्तो वाली वीडियो देखती है, और जो इंस्टाग्राम वाली है उनको उर्दू पसंद है, उर्दू हो गई, हिंदी हो गई, तो वो उसमें अच्छी जाती है। अच्छा अच्छा शवाल तासो सर बजदी सर हवाली सर पुछना को मामा च दार आला चे तासो एआई ऐप च दा लका मतलब द क्रिटिकल केसेस बा हम पचरा जिनो डेटा सिक्योर कवलो वाल च ऑप्शंस दा शया सा पचे। इसमें बेसिकली हमारे पास जो डेटा सेव हो रहा होता है, स्टोर हो रहा है डेटाबेस में, ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, और हम इसको डायरेक्टली प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मार्केट में हिपा कंप्लायंस का एक सर्टिफिकेट होता है, तो वो हमारे पास है, उसके बाद हम इस सॉफ्टवेयर को मार्केट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके और दे सर दा हुआ चे मतलब दा एआई ऐप चे तासो वाल इलाज गर ना इलाज गर चे रेसी नो ज्यादातर खलक बा ज अवल खपल मादा हल कना चे ज चैट जीपीटी तलार चे मावल ओस माता लक बॉडी पेन की जी दा माता बुखार राजी या चे इशू दा ना नो जाहिर खबर चे इलाज गर मांदे ज्यादातर खलक राजी नो दे सर बाद डॉक्टर्स वाल चे कुम अगर डिमांड दा अब दे सर कम नसी। मैम जब हमने स्टार्ट लिया था कुछ साल पहले पेशावर में, क्योंकि मैं इसके पीछे थोड़ी सी स्टोरी भी है। जी जी एग्जैक्टली हाँ जी, बेसिकली हमने स्टार्ट लिया था, जो मेरे पार्टनर है, मेरे कज़न भी है, बड़े भाई भी हैं, सैयद नाजिश अली, तो उनकी वाइफ जो है वो डॉक्टर है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे जब हमने स्टार्ट लेना, उन्होंने मुझे बोला यार एक अपॉइंटमेंट सिस्टम जनरल सा बना दे, और जो ना भाभी के लिए वो अपॉइंटमेंट्स वगैरह बुक, वो डर्माटोलॉजिस्ट हैं। तो मैंने वो प्रोजेक्ट समझा और मैंने उसको स्टार्ट किया। फिर क्योंकि मेरा घर डबगरी में था, तो वहाँ पे एक मसला पेश आता था हमें। डबगरी गार्डन अगर आप शाम में जाएं और वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स आए होते हैं, तो आपने 1 किलोमीटर भी ट्रैवल करना हो, जो सिटी साइड पे लोग रहते हैं उनको इस चीज़ का अंदाजा है, आपको 1 किलोमीटर भी ट्रैवल करना हो तो आपको घंटा वेट करना होता है। कॉल ले लेते हैं जल्दी से। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम ज़की भाई। वालेकुम अस्सलाम जमान भाई सिंह, तबीयत हम खुद है जमान मुलाखिल कोई न खबर कुम जी। जी सर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कहाँ थे आप? स्टासु असल के इंफॉर्मेटिव चिकम प्रोग्राम में करना डेर गौर से गोरमा जी नो वल स्टासु डेर एक्टिव प्रोग्राम में जमा दा बी लॉगर छरा गले दा आओ जी देना पर उर्दू के भाई दो सवाल हो कम वाले सीधा वही जमा पख्तो लगा कमजोर है दा। प्लीज प्लीज प्लीज। बीबी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन आप ये बताएं कि बी लॉगर के लिए क्या आप कंटेंट्स जो है वो मिसिंग है हमारे पास। हम जितने भी लॉगर या टिकटॉक बनाने वाले, मैं खुद भी लॉगर हूँ, आप ये मुझे बताइए कि कंटेंट जो है उसका कितना अमल दखल है। जब आप कोई ब्लॉगिंग करती हैं तो उसमें कंटेंट हम सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं। देखिए ओल्ड हाउसेज इस वक्त जो है उसके अंदर लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। अभी तक मैंने किसी ऐसे टिकटॉकर को नहीं देखा जो किसी ओल्ड हाउसेस को जाकर जो है उसने कवर किया हो। और आप कंटेंट्स के लिए आपके पास कोई स्क्रिप्ट लिखने के लिए, कोई कंस्ट्रक्टिव बात लिखने के लिए क्या कंटेंट्स क्यों मिसिंग होते हैं, इसके ऊपर तवज्जो क्यों नहीं दी जाती। दुनिया के अंदर जितने भी ब्लॉगर्स हैं वो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं कंटेंट के ऊपर। हम जो है हमने कभी कंटेंट के ऊपर वो नहीं, एडिटिंग के ऊपर तो आप बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन क्या कंटेंट के ऊपर जो है वो क्यों नहीं फोकस किया जाता है। इसी तरह ओल्ड हाउसेस हैं, इस तरह जो है वो अर्ली एजेस के छोटी उम्र की बच्चियों की शादी का मसला है, डिवोर्स के मसले हैं, ये ऐसे सोशल इशू हैं जो सोशल मीडिया को हाईलाइट करने चाहिए। लेकिन हमारे ज्यादातर टिकटॉकर्स जो हैं वो जोक्स की तरफ जो है चले जाते हैं और सिर्फ अपनी उसके लिए लाइकिंग के लिए वो करते हैं। तो कंटेंट्स के ऊपर जो है वो तवज्जो क्यों नहीं दी जाती, और इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं उनको क्यों नहीं टिकटॉक के ऊपर, उनको क्यों नहीं सोशल मीडिया पर लिया जाता, ताकि माशरे की इस्लाह जो है हम इस साइंटिफिक तरीके से कर सकें। थैंक यू सर। ब्रेक के बाद आप इंशाल्लाह ब्रेक नंबर बता सर जवाब दर की ग्रान गतुन के वडू के दमालू बे मलाइका दी खबर जवाब दर की आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक जी। जमगा पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक हो डिफरेंट दी ना जमान मुलाखिल से भी ओ क्वेश्चन को दैट वाज वेरी जेन्युइन चलन सबा खलक ज्यादातर चिकम दी आगा देर चीप शिजुनु सरा टीआरपी हासिल है एग्जैक्टली और आगे दवजना अगी चीप से चीपर होते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज अभी वाड़ी च खलक लाइक्स
دا زمونږ کله دا سوچ پیدا شو چې مونږ یو سړی په تکلیف کې وګورو نو مونږ خوشحالي لا دا زمونږ څنګه سوچ پیدا شو چې هغه پورې او خاندو چې څوک را پروزي مونږ بر پورې او خاندو نو it shows your mental approach بیا دا زمونږ څنګه سوچ پیدا شو چې صرف د فن شیزونه چې دي هغه به وایرل کیږي ٹھیک شو او بیا دا څنګه اپروچ پیدا شو چې زه وایرل کېدل غواړم what do you mean no matter what like چې سم ستا ذهن کې راځي یا به کې صرف وایرل کېدو دپاره نو داسې خو بیا ډېر اسانه شو یار بیا خو د چا خبره چې نه مشهورېږي نو اور زه څه نور څه نه وایم دې نه جی سر زمان صاحب نے بہت خوبصورت کوشچن کیا میں جینوئنلی کہتا ہوں کہ یہ بندہ ہے تو ماشاءاللہ بہت گہری بات کی ہے انہوں نے جی آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے جو آپ ایک رسپانسبلٹی آپ پہ انہوں نے ڈالی ہے मेरा तो यही है कि जैसे कि मैं एक फूड ब्लॉगर हूँ तो मैं सिर्फ फूड कवर करती हूँ लेकिन उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे इन्फ्लुएंसर्स को चाहिए कि इस जगह का या इन चीज़ों का भी जिक्र करें अपने कंटेंट में ताकि लोगों को पता चले इस बारे में तो हमारे इन्फ्लुएंसर ज़्यादातर टिकटॉकर्स क्या करते हैं कि आपस में लड़ पड़ते हैं वीडियोस बनाते हैं वायरल होने के लिए कोई इस तरह की बात तो मैं कहती हूँ इन चीज़ों पे ज़रा फोकस करें तो इसका भी अगर आपको याद हो स्वात के उस बच्चे का वाकया जिसके दोस्त के पास पिस्टल था उसने दिया और उसने वैसे ही अपने सर पे रखा वो खाली उसने कहा खाली है और उसकी वजह से वो बच्चा मर गया जी तो मेरा ख्याल है कि वो तो सबको याद होगा او خلک به دا هم وایي چې د مرګ الله له طرف نه لیکلی و نو داسې مغسلی نو الله پاک عقل درکړی دا شعور یې درکړی دا نو دې مطلب خو دا نه سللی چې تاسو داسې زمان صاحب نے جو بات کی وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ فوڈ بلاگر ہو تو آپ پوری کوشش کرو کہ آپ ایمانداری سے اسی فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ اچھا کام کرو اور لوگوں کو جب آپ سجیشن دیتے ہو تو ایمانداری پہ مبنی اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ایک فیملی اپنے بچوں کے ساتھ آئے گی اور وہ میری ریکمنڈیشن پہ اس جگہ پہ آ کے کھانا کھائیں گے تو کم از کم ان کا وہ ڈنر ان کی وہ ویکینڈ ان کا وہ لنچ برباد نہ کیونکہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے کتنی مہنگائی ہے بہت زیادہ خو زمان اگر خیل سے تاسو چې کومه خبره وکړه I agree with you بالکل I wanted to start blogging لیکن پھر میں نے کہا کہ میں جس طرح کرنا چاہوں گا لوگ هضم نہیں کر پائیں گے ایگزیکټلی ورې چې زه کول غواړم ډېر سیریس ایشوز باندې چې هغې باندې بل څوک خبره نه کوي لکه هغه ورځ مونږ پې تاسو به کتلی چې ټیوزډے باندې سپیشلي مونږ یو سیریز وچلولو او د هغې اوس هم روان دي د هغې چې بلیک میلینګ خلاف او سوشل میډیا چې څنګه ګنده استعمال کیږي نن د هغې خلاف سایبر کرائم خلاف مونږ لګیا یو جی بالکل هغه اوس ګوره خیبر ټي وي یو جهاد شروع کړی دی خو د پرابلم از ناٹ صرف دې پورې یو زمان مولا خیل صاحب لکه چې څنګه خبره وکړه چې یار اولډ هاوسز ته تاسو لاړ شئ جی نو هلته به تاسو ته پته وي څومره ښځې او سړي مور او پلار نیا نیکه خلکو د کوره ویستي دي ایگزیکټلی بالکل سر لکه چې خیال یې نشي ساتلی دا خو زموږ کلچر کې ډوشتی نه یار د اولډ هاوسز از ناٹ اور کلچر زموږ کلچر کې خو مشر ته موږ داسې ګورو لکه چې د زده کړې یو مدرسه مونږ ورته ګورو چې یاره هغه ته وګورو د هغه په رنګ ایکټ به کوو د هغه په رنګ به ناسته پاسته کوو بالکل نو هغه خو خپل ژوند غریب تباه کو ستاسو دپاره پاره پکار چې تاسو مو ښه آخر زندگی به داسې شي شوال بھائی دا ای آی په باره چې موږ خبرې کولې او یو منټ نه ای آی باره کې چې با جی ایم صاحب ته ویلي چې یاره ای آی مدد سره دا لږ موږ ته یو 40 سال بعد خو 50 سال بعد چې دا وسنګ ښکاری عالیه راځي چې وګورو ګرانو کتونکو چې څنګه وخت عالیه کیوټ سو کیوټ کنا سر ماشاءالله رښتیا باندې کنا الله دې خوشاله لرته خوړو څه غوښه مخه نه دا حاصل کړي او دې دومره مدت کې هیڅ خوراک مراک نه نه دا موږ په دې باندې خبره کول غواړو ګرانو کتونکو چې دا ای آی څه داسې خطرات دي مونږ فیس کوو فائدې هم دي څرنګه علاجګر غوندې ایپ دو لانچ کوي لګیا دي او کار پکې نو نقصانات هم ایستا دي अच्छा ज़की भाई सॉरी मैं यहाँ पे अपना एक टीचर थे उन्होंने मुझे एक ज़माने में जिस टाइम मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी काफ़ी साल हो गए लेकिन मुझे अभी तक याद है उन्होंने कहा था कि जो वेपन होता है या गन होती है ये बजाते ख़ुद इसमें क्योंकि जान नहीं होती ये कोई अच्छी या बुरी चीज़ नहीं है
लेकिन जो इसके पीछे बैठा हुआ है या जो इसको कैरी कर रहा है, जो इसको कंट्रोल कर रहा है, वो इसी वेपन को अच्छा भी बना सकती है और बुरा भी बना सकती है। आप इसको उठा के कत्लेआम करें, आप गलत काम करें, आप चोरी करें, तो वो वेपन बुरा हो गया। आप उसको उठा के किसी को सिक्योर करने के लिए, किसी को महफूज करने के लिए इस्तेमाल करें तो वो अच्छी हो सकती है। सिमिलरली ये भी जैसे वेपन भी एक टूल है, एआई भी एक टूल है। आप चाहें तो इससे आप फ़ायदा उठाएं, इससे लर्निंग करें और आप दूसरों को भी फ़ायदा दे सकते हैं जिस तरह हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो चलिए, एक तो ये तो आपने चलिए मजाक में किया था, लेकिन इस तरह के बड़े सारे केसेस जो पाकिस्तान में रिसेंटली हमें मीडिया पे भी देखने को मिले हैं कि जी कोई टिकटॉकर है फेमस, उसकी कोई वीडियो बन रही है, किसी की फैमिली की वीडियो बन रही है, तो मतलब ये एक ख़तरनाक टूल भी हो सकता है अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करें। भी रिसेंटली कुछ महीने पहले, अभी आपने चैट जीपीटी का जिक्र भी किया, तो आपने हेल्थ के हवाले से किया, तो मुझे वो किस्सा याद आ गया। अभी रिसेंटली न्यूज़ पे भी ये चीज़ वायरल हो रही थी। कैलिफोर्निया में गालिबन एक बच्चा था 14 साल का कि 15 साल का, उसने चैट जीपीटी से बात करते करते ये यहाँ तक पूछा कि जी मैं सुसाइड कैसे करूँ। हाँ, और उस बच्चे ने बकायदा सुसाइड किया। तो अभी चैट जीपीटी के ऊपर वो केस चल रहा है। हाँ, चैट जीपीटी ने बताया कि आप इस तरह कर सकते हैं। ज्यादा लोग इस तरह करते हैं, और आप इस मैंने तरह भी भी कर खुद सकते पर्सनली अगर मैं अपनी वो बात शेयर करूं, मैं माखपले चैट जीपीटी तवतेली वो सुसाइड बच्चरंगे कवे नो अल्लाह अगमान अकबर। इकडला वो नो सर जिन्ना असे में दा ची शे दिखना नो नो सर असे मा So चेक the fuck दिक्कत सांग नो नो सर ब्याच चल असे मा अगर कवले कना चेक कवले में चचवाई नो ई गमान इकडल मा ते न रा कवले कना चे दा उस जका जी सर दी केस न पास जी सर नो هغه به هغه بعد چې ما ورته ویل چې زه سوساید نه کوم خو د سوساید نه به جان بچ کوي چرنګي نو بیا هغه الټا پروسس ما ته واړه بیا وشولای چې دا تارونه چې سره وژغه کې یو بل سره و جنگوي نو تا ته کرنٹ هم درکې دلای سي دینه دا اوایډ کوا دا شیان ما کوا چې تار ته پنده واچوي غلې ته ما چوا نو بیا هغه پروسس الټا پروسس بیا ته وشولای نو ډیر خطرناک ده. شي از رائټ لایک زموږ ماشومان ډیر داسې دي چې هغه ډیر وران دي، ډیر د زیات ورانه نه وجنم ډیر شوزونه هغه تپوس کوي. बिल्कुल. बट एक सवाल, मुझे एक चीज बताओ कि जो खतरनाक चीज है अभी वो क्या है सबसे ज्यादा आपके ख्याल में, बीइंग एन एक्सपर्ट ऑफ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर्स, आपके ख्याल में द मोस्ट डेंजरस थिंग? ज़की भाई मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर किसी चीज़ का नाम लेंगे तो वो इतना मुनासिब नहीं होगा किसी फिजिकल चीज़ का जिसको हम टच कर सकें. मेरे ख्याल से सबसे ख़तरनाक चीज़ जो है वो गलत करने की सोच है. अगर आप गलत करने की सोच रखते हैं तो आप एक नेल कटर से भी किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं. और अगर आप सोच ही अपनी पॉजिटिव रखते हैं, आप अच्छी सोच रखते हैं, आपके माइंड, आपकी थॉट्स क्लियर हैं, तो आप आपके हाथ में वेपन भी हो तो जैसे मैंने पहले बताया आप उसका पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं. वैसे ये इलाज घर के हवाले से भी थोड़ा बता दें कि ये ऐप जो अगर आ जाएगी तो ये डॉक्टर्स की जगह ले लेंगे, तो ये इसमें कितनी वो सच है? तो बेसिकली हमारी इस पे उस टाइम बात हो रही थी, लेकिन ब्रेक पे चले गए आप लोग. तो बेसिकली ये जब हमने स्टार्ट किया था तो उसका पर्पस ये था क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम था ये सिस्टमेटिक नहीं था. हमारे सामने केस स्टडीज होती थी और इवन ये मेरे सामने का देखा हुआ है. मैं कोहाट से ट्रैवल करके पेशावर आ रहा था, कुछ काम से गया हुआ था, तो मैं थोड़ा क्वार्ट पे इंटरनल लाची से आगे कुछ इलाकों की साइड पे गया हुआ था काम से. तो एक खातून थी, उनकी डिलीवरी होने वाली थी. तो क्योंकि उनको टाइमली पता नहीं था जी मैंने कब जाना है, किस टाइम जाना है, क्या प्रिकॉशंस है, तो वो टाइमली नहीं पहुंच पाई और वो रास्ते में मेरी आंखों देखा वाक़या है. मतलब अभी मैं किस्सा किधर भी सुनाता तो मेरे अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, मैं क्योंकि मैंने देखा है सारा कुछ. तो वो खातून और उनका बेबी वॉर्म के अंदर ही वो वफात पा गए थे ना, जस्ट बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, जस्ट बिकॉज हमारे पास नॉलेज नहीं था. तो हमने बेसिकली ये इलाजगर मेरे ख्याल से मैं ये कहूँगा अदर देन बिजनेस, हम रेवेन्यू और पैसे कमा रहे हैं, वो हम अपने और कामों से कमा रहे हैं. मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, मैं और चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, बट ये कॉज है. इसको बिजनेस से ज़्यादा हम लोग एज अ कॉज देखते हैं क्योंकि जो रिमोट एरियाज़ में मैंने कुछ टाइम गुजारा है मिरान शाह और इस तरह के इलाकों में ना, तो मैंने वहाँ पे लोगों की तकलीफ देखी है. और मैं वही लोग देखता हूँ जब डबरी गार्डन में मैं शाम को निकलता हूँ अपने घर से, वही बेचारे तकलीफ से आते हैं. और पता नहीं एग्जैक्टली जैसे बच्चा लजमा एग्जैक्टली चरता मिलावी गमा अगर यो डेर मशहूर वाक़या बच्चे अगर यो कसीदा व्हीलचेयर के रावस चेहरा गर्जोले डॉक्टर वर्ती री दे हमारा ही लब गुजा ना जालिम लिफ्ट के दन न को बस बेरा कुछ भी दे हमारा योशवा जी. ज़की भाई सॉरी ये सिस्टम पूरा सेम ते वागिस्ते जी
एजेंट्स जो यहाँ पे फिर रहे होते हैं ना, एग्जैक्टली अब वो तो एब्सोल्युटली इग्नोरेंट लोग हैं, अनएजुकेटेड हैं, अभी तो इस पता नहीं नो दाखल को लतीफ़ा कारी खुद इट लिटरली हैपेंड कि अगर फर्स्ट फ्लोर ना दन को लिफ्ट के बरे ओके जो लो बेरा कुछ को विदाय मारा यूशवा वो या मशीन के दन ना कमा मशीन बर लाड़ो बरा को ना को तो पता ना लगे ना ये दरवाजा को लाओ शो ब्या बंद शो बस बेरा हमारा यू का नो देयर आर सो मेनी एजेंट्स अलता वलाड़ी जी और तासु लिटरली लका अगा वेगन किम ना की नहीं दा से यो तरफ तमरा कागी बल तरफ तमरा कागी दा पाग डॉक्टर्स मादरी डिपेंड की जागी ते योर रिक्वेस्ट को मनन दा डबगरी ला दा चरता मेडिकल कॉम्प्लेक्स चरता ये स्पेशली डबगरी की चिकमी ज अगर टूल डॉक्टर्स का दे वक्त मा आवरी दे आर वेरी रिनाउंड डॉक्टर्स अल्लाह तबारक व तआला तसले यो इज्जत दर करे दे और रिज़्क पर कोलो वाला दा अल्लाह ताला ज़ात ठीक शो ना किस्मत ना ज़्यादा अश्ता दे ना कम अश्ता दे ची कम रिज़्क तासो दरस या वासिम दरस यो गरीब सड़ी ची आगा सारवे खर्च की लाकोर खर्च की पटे खर्च की चेहरा जमा चे जमा दा मोर खैला जुशी ची आगा बच्ची आज दल तराशी जी और खो एजेंट्स ते निम नजाती पैसे जेब तवाज जे द डॉक्टर ला बोझ मुसागा तना पता डॉक्टर फीस सुमरा दे एजेंट वीजा बस फीस हम जवर को मा आस टेस्टनो में सुनार तो पाराम के ना काका बस गरीब खुशहाल शी चेहरा स्तड़े वजीरिस्तान न रागले मदे पूरे जब अफसोस मंडी तरह हम परिश्रम न पुएगा माँ दवाइयाँ भी वो उसको लेकर दे देते हैं टेस्ट भी सारे अब 25,000 रुपया फॉर एग्जाम्पल द जेब की चोरी 50,000 के यार सोशु द गरीब बाबा तना द पता एंड द प्रॉब्लम इज जैसे दागे टेस्ट ना आया शवीम दी करना दाम यो क्वेश्चन दे मेडिसिन आया 1 नंबर दी का 2 नंबर दाम क्वेश्चन दे डॉक्टर सही दे करना दाम क्वेश्चन A short break and then we'll be back. Tabiya da Marco Polo music ko lago lorora mung da bakho brashi kana ugi bamshu. No. La da खुशहाल हाल वाला लगाओ music ठीक है Marco Polo देर slow ही गाना. Anyhow, आलिया. जी सर. कदी तमुंगा हुआ यू दिले यो project work. चे दीता वायु चित्तासु the food app जोड़ गई. ठीक है. और दिले दा प्रोजेक्ट दर कुछ आ फूड ऐप द परता सु कंटेंट दिले वर्क है और दैट इज समथिंग गुड देर जता से यो खबर हो कब फूड ऐप पर दुनिया के टूल न ज्यादा कम यूज की आगा यो एयरबीएनबी दे ठीक शो आगा ऐप ता और पसे भी फूड ऐप से और जे खलक मुंग खुदल त खैर गरीबी दा बाहर मुल्कों की खागी बाहर खुराक किया और इसका ना बिल्कुल जी तस्वीर सर ना दे एप्स सर तयास ले मा खपल फोन ते दा शैतानी सरा लमाज गची फूड एप्स ना मावल हा फोन डकती पचे न दे खबरे सर जे एग्री कम ते सर आज पे दम नंबर च खोराक ना हां सर हर चौक पमड़े दी ट्रू नो जिसुक ज्यादा ट्रैवलिंग कई का ना नागी एयरबीएनबी शो फूड एप्स शो दागी फोन की जरूरी भी एग्जैक्टली नो ऑटोमेटिकली दा से खलक च कम दी उसको खैर दी बल ऐप तैयारी दी गया दे फीमेल्स दा पारा स्पेशली और दागी ऐप वाले सर लग रहा तो इस व्हाट इज द कांसेप्ट सो बेसिकली एक इंटरनेशनल ऐप है फ्लो के नाम से एफएलओ खवातीन यूज करती हैं तो मैं थोड़ा सा उसको स्टडी किया कि बार मैं जब भी काम करता हूँ किसी नई प्रोजेक्ट या इनोवेटिव चीज़ से जाता हूँ मैं कंपेयर करता हूँ उसको पाकिस्तान से और बाहर के मुल्कों में क्या हो रहा है तो हमारी टीम बैठी हमने डिस्कस किया तो वी केम अप विद द सॉल्यूशन कि हमें फ्लो का एक पाकिस्तानी वर्जन बनाना चाहिए उससे क्योंकि एक जो इंसिडेंट मैंने सुनाया मेरे सामने आपको देखा इंसिडेंट है और इसके अलावा हमारे माशरे में या हमारे मुल्क में कुछ चीज़ें बड़ी टैबू बन गई हैं और उस टैबू बनने की वजह से क्योंकि उसको माशरे ने बनाया है बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं सिमिलरली बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं और बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है तो हम एक फ्लो का पाकिस्तानी वर्जन बनाने का बेसिकली ये है कि जो दूर दराज इलाकों में ख़वातीन होती हैं और उनकी जो भी मसाइल होते हैं हाइजेनिक मसाइल होते हैं वो उसके ऊपर बाकायदा ख़ुद को रजिस्टर करेंगी और हमारी इधर टीम बैठी होगी जो उसको गाइड भी करेगी और वो पूरा उसका एक पीरियोडिक साइकिल उस पर रिकॉर्ड होगा और उसके साथ उसको सजेशन दिया करेगा। बहुत अच्छी बात। जिस माशरे में टैबू ज़्यादा होगा या जिस घर में टैबू
थोड़ा सा इस चीज़ को समझा जाता होगा, इस इशू को डिस्कस करना। और अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे घरों में हमारे सामने ऐसे केसेस आए हैं कि घर में एक लड़की होती है, उसकी या वालदा फोत हुई होती है, उसकी कोई बहन नहीं होती, तो वो क्योंकि एज उसकी जब बड़ी होती है उसको इश्यूज फेस होते हैं, समझाने वाला कोई नहीं होता, वो परेशान होती है और वो नहीं समझ पाती, या लोग घर में लाजी बात है मेल के साथ डिस्कशन नहीं कर सकती। तो क्योंकि एक सोल्यूशन उसको मिल जाएगा तो उसको अपना इलाज कराने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद कर सकेगी। وګرانو کتو تاسو یو خبره تاسو پته چې ډیر فیمیلز د ډیلیوری دوران کې مړي شي جی او ماشومان هم اکثر مړي شي. دا غي ټول نغټه وجه دا ده چې وایرل انفیکشن چې کوم ده او ټیټنس چې کوم جراثیم دي هغه اني ټایم اني ویر. نو دا غي ډومبي سټپ دای دا چې دی کوم ویلې ان هایجینیک کنډیشنز چې کنه نو هغه شروع نه یو جنې د پاره یو مور د پاره ډیر خطرناکي او په خاص توګه باندې بیا ماشوم چې راځي هغه د پاره خو ان هایجینیک کنډیشن زهر دي خو وړو کې غونډه پچونه غونډه لایف ده کنه. سو یو هاف ټو ټیک کیر اف د مدر اینڈ د کید بوث. یس پلیز سر شوال ما دا ویل چې تاسو کله مطلب علاج ګرځا کنه نو خلکو ته ظاهري خبر د میډیکل ریلیټډ به تاسو اپډیټس ورکو یا کوېسچنز کی تاسو به آنسر ورکو نو تاسو ول چې د کوم بیک ټیم بناستی چې آپ دو اپډیټس آپ ڈاکٹرز یا بچوں کی. अच्छा उसमें मिक्स होता है, उसमें एक हमारी टीम है, नाम ले सकते हैं बुशरा हबीब मेडिकल की स्टूडेंट है का नाम है बुशरा हबीब माशाल्लाह हमारे साथ हमारी टीम में बहुत काबिल लड़की और मेडिकल उसने भी रिसेंटली ग्रेजुएट हुई है. इसके अलावा हमारे साथ अज़बा जाहिद है, वो भी मेडिकल की नहीं है बट उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है और वो कभी कभी कोई जो नॉर्मल केसेस होते हैं जो वो खुद रिजॉल्व कर सकती तो वो उनको कम्युनिकेट कर रही होती है. तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी कम्युनिकेशन टीम का और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ उन पे कि लड़कियाँ एज भी इतनी नहीं है लेकिन वो मेहनत बहुत करती है और मेरे ख्याल से इस माशरे को बेहतर बनाने में उनका एक अच्छा रोल प्ले हो रहा है. बहुत अच्छी बात, ज़बरदस्त. और मलाइका कोई आवाज़ ज़ान सर लिखा है ना कोई और ऐसा नहीं है जो आपके साथ हेल्प कर रहा हो या कुछ इस तरह? बस मेरे साथ फैमिली होती है, मेरे पेरेंट्स और बहन भाई. बस वेरी नाइस, वेरी. मलाइका बहन भाई हम 3 बहनें और एक भाई है छोटा है. नहीं आप समेत 3 हैं जी मतलब 4 है टोटल माशाल्लाह. आप सबसे बड़े हो? नहीं मैं सेकंड नंबर. चलो शुक्र है. ये सबसे बड़ी जो होती है ना या होता है ये गरीब है भी फंसता जाता है हर जगह. वो बेचारी मेरे साथ हर जगह जाती है जो सबसे बड़ी होती है. और माँ बाप भी अगर छोटा कोई बुरा काम करे तो सब तुम बड़ी बहन हो अच्छा तुमने क्यों नहीं बताया ता په پکار د چورته مشره خور ورور ته وتاي نه چې پلار وال جای شیخ کوي او مشره خور وال مور وال جای تو خو مشره نه کنه نو سر د کشره یہ تو بڑی ما ول 2 مهینے ستړي بیا کنه بالکل سر مشره خور او امي نو بس یې غواړي به فائدې اخلم سر نو کم وال چې هغه وال به ډیر زیاتې فائدې और दरमियान वाली नहीं दो डेरे क्या किसी को शिकायत भी लगानी होती ना मेरी बड़ी बहन को कहते हैं, मुझे कोई कुछ नहीं कहता. ना दी खबर डी रखस्ता आली हुई ची जो सबसे बड़ा होता है या बड़ी होती है और जो सबसे छोटा होता है छोटी होती है. दो वाले फायदे दी द्वाड़ो नुकसानात हम दियो फायदे बहुत लेकिन दा द्वाड़ा टारगेट भी कोर के कना कस विलास माच टोल न वडू किताब या ऊबर वाखला हां गरीब खबर हम नहीं यार सर ऊबर वाखला ऊबर वाखला मिलमनो लागा बासा वर्ष वर कोलाव का دا وړو کې غریب یار د دنیا کې ور کولاولو لا پیدا شي. تاسو به خبر نوٹ کړی موږ دومره لیزی شو نن سبا او سپیشل جنہ کې ور نہیں دروازہ نہیں کھولتے خد ور کولاولو کی جګړې अब कोई बेल कर देना दरवाजा खोलने कोई नहीं जाता या लका वर्ष दरवाजा खोलाओ नहीं करा यो तो वर्ष का ना और दरवाजा नजदीक जैसे ये दरवाजा फॉर एग्जांपल बंगले तो है नहीं हम सब मिडिल क्लास लोग हैं सारे नुजी वर बने खुला बिया टूल नंबर कोट ही आगे के ठप यो टस बबुखरी बस 24 घंटे फ्री फायर खेलते रहते यू नो समथिंग लाइक दैट. नो टोल न मशर चिकम भी और टोल न कशर चिकम भी नो ची अमी राशि बिया आगा गुस्सा टोल न मशर ते गई चित्ता किम तुमने इंसानियत तो जी दी ते विच वर कोला के
बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे होता है ना। लेकिन सर जो मिडिल चाइल्ड होते आपके हैं, घर में कौन दरवाजा खोलता है वैसे? हमारा कॉलोनी है तो दरवाजा खुला होता है। नहीं नहीं, घर का दरवाजा खुला पड़ा वो होता है। खुला होता है, बस दादी का कमरा साथ है ना, तो जो भी आ रहा जा रहा होता है वो खिड़की से देख लेती है। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। दादी को बड़े गंदे काम पे रखो आप। वो गरीब कहेंगी कि यार मैं सबको देख रही हूँ, आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके पास भी कोई जाता है? जी जी, हम होते हैं उनके उनके साथ। पास बैठा करें अभी सर जई की नहीं अभी यू नो दादा सी उम्र कने च माशूम शी बिया इंसान जी जी बिल्कुल। और बिया हर सब बजड़ वाली। जी सो उस उन्होंने एक दौर गुजारा है कि आपके अब्बू के लिए, अपने बच्चों के लिए, और फिर नवासे बहुत बहुत वो होते हैं ना, कहते क्या उसे कहते हैं? अजीज होते हैं। अजीज नहीं नहीं, वो इसके दी दपारे हो अगम मुहावरा भी है ना कि असल से सूद ज्यादा, वो तो पता नहीं कुछ इस तरह है। मुझे भी जीएम को पता होगा, वो वैसे भी नाना है ना, तो उसको पता होगा। जी शवाल, फ्यूचर वी हैव गॉट जस्ट 1 मिनट। फ्यूचर क्या एम्बिशंस है? अच्छा, फ्यूचर का ये है कि पहले इसको पाकिस्तान लेवल पे पूरा एक्सपेंड करें, पहले अपने सूबे के मसाइल अपने शहर के हल करें, फिर इसको मूव करें बाकी शहरों तक, और फिर इंशाल्लाह ग्लोबली हम लोग जाएं इलाज घर को लेके। जबरदस्त। व्हाट अबाउट यू? मेरा बिजनेस करने का फ्यूचर। वाओ, क्या बिजनेस? बिजनेस रेस्टोरेंट, ओह फूड बिजनेस। पता लगे दले दूर पर रेस्टोरेंट्स माने शोरे दले da gan ce gata da khodi ce da ali asi یو خبره ده د ناظرین د خوراک چې کوم بزنس دی کنه واحد داسې بزنس ہے چاہیے کہ 70% ګټه ده کته خه طریقې سره کې بالکل اینڈ بیا هم کته ته خرچې بچو با سیار سے کنه نو دا 65-60% کو تا ته ملاویږي کته لکی نو د پهلوان چولو پرنګ ټولو خاندان ودی امریکای کې سر انټرست خبر هی وسره چې خوراک سره د شان سره د انټرست کنه هر انسان به ایو فیل ته سره جی لګه دې سره او د آی تھنک خوراک سره شوق ده. थैंक यू सो मच ग्रान को तुमको द प्रोग्राम का तो और माला वाली ला इजाजत रखी सबब इंशाल्लाह यो नवी प्रोग्राम सर वस्ता से प्रोग्राम दे राजम तरगी पूरी पर ढेर ख्याल साथी अल्लाह हाफिज़.